हजूर पुछना चाह रहे हैं कि जो निज़ाम फ़क्र दा ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 14 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਫ਼ਕਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫ਼ਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। लफ़ज़ फ़क्र फ़क्र दर हकीकत फ़क्र दा तअल्लुक डायरैक्ट अल्लाह दी पाक ज़ात नाल है और इस तअल्लुक नूं कायम करने वास्ते अहले फ़क्र दी निस्बत ज़रूरी है। अगर अहले फ़क्र दी निस्बत ना होवे तो ताल्लुक नहीं बनता और ज़रूरत इस दुनिया के अंदर असल ताल्लुक दी है कि असी अल्लाह वाले किस तरह बन सकते हैं। असल मकसद फ़क्र दा और फ़क्र दी निस्बत दा ये है। जिस तरह के तुसी जानते हो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर दी ज़ात मुक़द्दस हर जहत तो मकाम उला दे मालिक ने और हजूर दा वजूद पाक बज़ाते खुद पहचाने ज़ाते हक दा सबब है। एक गल बड़े गौर न समझने वाली वजूद महबूब खुदा पहचाने ज़ाते हक दा सबब है और इस दे उत्ते जो असल मोहर है वो अल्लाह करीम दी अपनी लगी हुई है कि अगर मेरी पहचान, क्योंकि मैं कुरान सुना रहा था, अगर पहचान होएगी मेरी पहचान होएगी तो मेरे महबूब दे ज़रिए होएगी और महबूब दावर तक पहुँचन लई सानू असल फ़क्र दी निस्बत दी ज़रूरत है। यदि तफसील जितनी मर्जी लंबी कर लो वो एक अलहदा चीज़ है, मगर मैं मुख्तसर टाइम विच तवील गुफ्तगू समेटांगा मुख्तसर टाइम विच ताकि तुहानू समझ आ जाए, क्योंकि सानू तो मगज़ चाहिए, क्योंकि दीवान हफसा फरमाया मगज़ कुरान अज कुरान बर्दाश्तेम उस्तगां पेशे सगां अंदाख्तेम। आप फरमाते ने कि कुरान दा मगज़ असां फ़कीरां कढ़ के खा लिया है व उस्तगां पेशे सगां अंदाख्तेम, वो पिछे हड्डियां रह गई, वो असां इन्हां कुत्तियां अगे सुटियां ने, नाले खांदे ने नाले लड़दे ने। साडा तो रौला मुक गया है, जो असां हासिल करना सी कर लिया। यानी कि कुरान दा मगज़ जिहड़ा वो असल है की है, पहचान ज़ात हक। तो जदों असी इस पासे मुतवज्जो हो जावांगे तो फ़कीरो मैनू तुसीं ये दसो, असी जो अल्लाह दी पहचान दी तरफ मुतवज्जो हो जावांगे तो क्या सानू दुनिया दी किसी चीज़ दी कोई ज़रूरत रह जाएगी, सानू कोई हाजत रह जाएगी, सानू कोई चाहत रह जाएगी, सानू किसी चीज़ का कोई लालच रह जाएगा? क्या साढ़े अंदर कोई ऐसी चीज़ पनपेगी जिहड़ी सानू रब दी राह तो पिछे करे? क्योंकि साडा तो मकसद ही हो रहा, मकसद की है कि जिदे हाँ उहदी पहचान कर लईए।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮ ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮ ਇਲਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਜੂਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਕਰ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮਗਰ ਅਹਿਲੇ ਫਕਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਫਕਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਹਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਲ ਜ਼ਾਤ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਲਕ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਗੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਲਾਕੇ ਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿਆ कहने? हज़रत शाह हुसैन ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੀ ਆ ਇਥੋਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ?
इलम तुहाडे कोलों कोई खो नहीं सकता। क्यों कि तुहाडे सीने च महफूज है। तवज्जो ना सुनना मेरी गल भाई, इलम तुहाडे सीने च महफूज है, तुहाडे कोलों खो को नहीं सकता। तो इलम दियां कुछ होर भी शाना हैं, इलम दियां कुछ होर भी शाना हैं। वो की शाना ने? वो मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा दी पाक ज़बान चो इरशाद, अगर ए होवे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहरे इल्म और अली दरवाज़ा है। मैं इलम दा शहर हाँ, अली दरवाज़ा है। कहते ने इलम बड़ी दौलत है जी, ये तुहाडे कोलों खो को नहीं सकता। तो जे पूरे दा पूरा शहर ही हासिल कर लो तो अगर सारा शहर ही वजूद मुस्तफा की है, पूरे दा पूरा शहर इलम दा, और उस वजूद नूं हासिल करने वास्ते सानू ज़ात अली दी लोड़ है, ज़ात अली दी निस्बत दी लोड़ है। और ज़ात अली की है फ़कर दा शहनशाह, ज़ात अली की है वलायत दा मालिक, कुल फ़कर दा मालिक, कुल वलायत दा मालिक। क्या है दीन तो बाहर है? क्या दीन तो इलावा है? समझ आ गई गल दी? एक तुहानू खूबसूरत गल सुना दें, तुहानू होर मज़ा आएगा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उर्फे आम च क्या जाता है आशिक़े रसूल। उशाका ने मुस्तफ़ा च आपदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दे आशिका च पहला नंबर है आपदा। आप आशिक़े रसूल ने। वो कैसे आशिक़े रसूल ने? जिन्हें सरकार नूं वेखिया भी नहीं, आप नूं बज़ाहिर नहीं देखिया। हज़रत अवैस करनी ने 2 दफ़ा मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए, तो बस वो पिछों वालदा ने कहा कि मस्जिद नबी च लगा जा। हुण इहो जे फरमा बरदार अपनी मां दे अमर दे कि मस्जिद दा अमर लैके आए तो घर नहीं गए, मस्जिद तक ही रह गए। सरकार घर सन, क्या अच्छा चलो फिर सही। दूसरी बारी आया तो मां ने क्या घर लगे जाओ। हुण घर आया तो हजूर मस्जिद च सन, उधर नूं ना गए। एक बारी घर ना गए, दूसरी बारी मस्जिद च ना गए, ज़ियारत नहीं हो सकी। तो जदों घर आए हो के चले गए, सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हजूर नबी पाक दी ज़ात करीम घर आए तो आपने दसिया कि सरकार करन तो एक आया सी बंदा। करन इलाका है बच्चा इराक दे अंदर, उत्थे आप रहिंदे सी। उतों एक बंदा आया, आप दा पुछदा सी। हजूर फरमांदे ने नां की अपना दसदा सी। अर्ज़ की आका अपना नाम अवैस दसदा सी। ये गल सुनन दी देर तो मेरे सरकार फरमांदे ने अपनी बीवी नूं क्या, आयशा तेरा मेरियां अखां च अखां पा के ते वेख, तू वेखिया उसनूं? क्या हजूर मैं उहदी कंड वेखी है जांदे दी, दरवाजे दी विरल विचों झीथ विचों, कुंडी ते मैं खोली नहीं। मैं क्या सी लगे जाओ मस्जिद च, वो कहते ने नहीं मैं फिर सही। तो आप कहते मेरी अखां च अखां पा के वेख। हुण आप दी बीवी मुल मोमिनीन ने हजूर नूं वेखना शुरू किया। सरकार कुछ अरसा देखिया, देख के ते आप चले गए मस्जिद में ऐलान किया, ओ सहाबीओ जल्दी आओ। हुण सहाबी आ गए। हुण आप फरमांदे ने फरते मुसरत चेहरे ते नज़र आ रही है, मुस्कुरांदे फरमांदे ने, ओ सहाबीओ मेरियां अखां वल वेखो, मैं अज ओ अखां वेख के आया जिन्हां अखां ने मेरे अवैस दी कंड वेखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अवैस दी कंड वेखण वालियां अखां नूं वेख के आया तो तुसीं मेरियां अखां वेखो ताकि तुहानूं भी लमस महसूस होण उस मेरे फकीर दे। अल्लाह अकबर। मेरी सरकार की फरमांदे ने, उस मेरे आशिक दे, उस मेरे दीवाने दे। फकीरों मैं तुहानूं गल सुना रहा, अवैस करनी तुहाडा की ख्याल है आशिक खुदा है? नहीं, आशिक मुस्तफ़ा है। क्योंकि अवैस का तो भुलेखा निकले है ना कि इश्क मुस्तफ़ा के अंदर इश्क खुदा मुज़मिर है। इश्क खुदा वखरा नहीं है इश्क मुस्तफ़ा तो, मतलब किसी को भुलेखा होवे।
ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਪਨਪਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਔਰ ਫਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ तो तकमील की गल हो रही है कि तकमील किस तरह होंगी है दीन दी, इंसान दी। तो वैसे करनी अर्ज कर देने, या अली क्या मेरे मुतल्लक की ख्याल है कि मैं मुकम्मल हाँ, अपने मुआमले च मैं मुकम्मल हाँ? तो मौला अली कहते नहीं, अवैस तू मुकम्मल नहीं। अर्ज की आका किस तरह? फरमाया तू केड़ा बैत है, तू बैत कीती है, इकरार कीते नहीं? क्या नहीं सरकार मैं तो वेखिया ही नहीं। तो फरमाया फिर जब तक बैत ना होवे, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब जब तक ना होवे उन्ना चਿਰ तक तो मुकम्मल नहीं हुंदा। तो वैसे करनी फिर अर्ज की आका फिर मैनू बैत कर लो ताकि मेरी तकमील हो जाए। पता नहीं किसी को पता कि नहीं पता, हज़रत वैसे करनी बैत ने मौला अली मुश्किल कुशा दी। हुण मैं पुछना आलमा नू ये किहड़ी बैत है? जहाद दी है, ये बैत जहाद दी है, ये बैत फ़कर दी है। फ़कर दी बैत अली दी ज़ात करे अवैसे करनी नू, ते अवैसे करनी दा सिलसिला फ़कर अज पूरी कायनात ते मशहूर है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी दी ज़ात मुकद्दस जिस ज़ात दे असी गुलाम हाँ, वो ज़ात कैसी ज़ात है? वो बसरे पैदा होवे ते गोदी च पलिया सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी गोदी च पलिया, जिदा नां हसन बसरी है। एक निस्बत तो आप दे नाल कुछ ताल्लुक भी है, ब्लड रिलेशन भी है। और जदों जवान होया तो मेरे अली मुश्किल कुशा एक दिन देखिया तो फरमाया याद रखो हसन बसरी दे वालदैन नू क्या कि ए हसन जम्मिया तुहाडा है मगर चमक मेरे इलम दी होएगी ये देते। फिर वही गल हुई जदों हसन जवान होया तो सैयदना अली मुर्तज़ा दी बैत की थी। आपने खरका खिलाफत हज़रत हसन बसरी नू अता कीता फ़कर दा। हज़रत हसन बसरी की ने ताबईन, आप ताबईन विचों ने, पता नहीं बेशुमार सहाबा दी ज़ियारत तो मुशरफ ने हज़रत हसन बसरी, मगर इस बैत नू हासिल करके सिलसिला फ़कर दे नाल मुंसलिक होए और सरकार मौला अली दे खुलफा विचों पहला नंबर है हज़रत सैयदना हसन बसरी दा। और उन्हां दी अगों बैत कीती हज़रत हबीब अजमी ने। हबीब अजमी वो जिन्हें अगों ताबईन की जियारत की है, वो तबा ताबईन विचों शुमार किए जाते हैं। ये है फ़कर दी लाइन जो मौला अली ने चलाई। वैसे करनी वर्गियां नू फ़कर अता कीता, हसन बसरी वर्गियां नू खरका खिलाफत अता कीता, और अज चहार दांगे आलम के अंदर फ़कर दा सिलसिला वजूद विच आया। और फ़कर दा मुकाम लोगों नू पता लगा कि फ़कर दा असल मकाम की है? पहचाने ज़ाते हक, पहचाने ज़ाते हक। मैं कुरान करीम के अंदर जदों ये पढ़िया ना, फ़ाइना मा तवल्लो फसम्मा वजहुल्ला, अल्लाह पाक फरमाते ने वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़ाइना मा तवल्लो फसम्मा वजहुल्ला इन्नल्लाह वासिउन अलीम। फरमाया तमाम मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह दे ने, और तुसी जेड़े पासे मुँह करोगे तो वजहुल्ला नज़र आएगा, अल्लाह का चेहरा नज़र आएगा। ओ वजहुल्ला मां सिवाए फ़कर दे अज तक कोई दस सकिया नहीं। ओदी तशरीह मां सिवाए फ़कर दे कोई कर सकता नहीं। वो फ़कर मुहम्मद मुस्तफ़ा है जिन्हें ओदी तशरीह की थी। वो अली मुर्तज़ा दे पैर चुमन वाला जिन्हें ओदी तशरीह करनी है, क्योंकि अली दरवाज़ाए इलम है। हुण भाई अली नाल वैर होवे ते इलम कित्थों आउणा है? ज़ाती अली नाल जो दुश्मनी होवे, कोई थोड़ा जिहा कोई कीना शीना होवे ते की ख्याल है तुसी हक दे आलिम बन जाओगे? नहीं, वो ज़ात नाल मुहब्बत रखोगे तो हक्का इलम हासिल होएगा। और इलम तुहाडे कोल ओ दौलत है जो तुहाडे कोलों खो को नहीं सकदा। और अल्लाह पाक तुहानू खैर दा इलम अता फरमाए कि शर वाले वेड़े ना वड़ जाओ। और शर वाले वेड़े वही वड़ेगा जो दुश्मन अली है, जो बुग़्ज़ अली रखदा है। उन्होंने इलम
हक का नसीब नहीं होएगा, उन्हें शर का इलम नसीब होएगा। ये बरमला कह रहा मैं। बुग़्ज़े अली शर का इलम देगा और हुब्बे अली खैर का इलम देगा, क्योंकि अली ही दरवाज़ा है शहर इलम दा, और शहर इलम मुहम्मद मुस्तफा दी ज़ात है। और रब जो फरमाए फायना मा तवल्लो फसम्मा वजहुल्लाह, तुसी जिस तरफ देखोगे तो अल्लाह का चेहरा नज़र आएगा। मैं फाज़िल बरेलवी नूं वेखिया, उन्हां तर्जमा की कीता, वो अहलो सुन्नत दी जमात दे इमाम ने, बरेलवी सिलसिले दे मूजद ने, ये जिन्हें बरेलवी ने आप नूं अपना इमाम मनते ने, अलहमदुलिल्लाह या रसूलल्लाह कहने वालियां दे वो सरबराह ने साढ़े अरबो अजम के अंदर। तो आप लिखते ने, बरेलवियां दे पीर लिखते ने कि अल्लाह फरमांदा तुसी जिस तरफ वेखोगे तो अल्लाह की रहमत नज़र आएगी। मैं क्या वजहुल्लाह तो डर के नसे सो कि किते कोई शिरक दा फतवा ना लग जाए तो उदू वड्डी गल सुना गए हो। सानू उदू वड्डी गल लभ गई। वो की लभ गई कि अगर वजहुल्लाह, अगर अल्लाह का चेहरा रहमत है तो रहमत है मेरे मुहम्मद मुस्तफा का वजूद है। मोहर लग गई इस गल ते कि तुसी जेड़े पासे जाओगे तो वजूद मुस्तफा नज़र आएगा, बशर्ते कि तुसी रब की पछाण का शौक रखते हो। हाय 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 हाय, बशर्ते कि तुसी पछाण रब दी ओदा शौक रखते होवो तो तुहानू चेहरा मुस्तफा नज़र आएगा, वजूद मुस्तफा नज़र आएगा, क्योंकि रहमत ते मेरे सरकार दा वजूद है। रहमतुल लिल आलमीन ते अल्लाह पाक दी मोहर है मुहम्मद मुस्तफा ते। रहमत ही नहीं मानते जिहड़ा रहमतुल लिल आलमीन होवे, जिहड़ा आलमीन दे विच रहमत होवे। फिर जेड़े पासे नज़र मारांगे जे ते रहमत नज़र आवे तो फिर तो वो ही नज़र आएगा किदा ना वजूद मुस्तफा है, किदा ना आका कमली वाला है। तो दोस्तों अजीज़ो, जुनैदी कादरी फ़कीरो, फ़कर की निस्बत का मकसद यही है। फ़कर की असल निस्बत का मकसद यो ही है कि असी रब वाले बन जाइए। रब वाले उंज नहीं बन सकते जब तक इस निस्बत नूं कायम ना कीता। केड़ी नूं? रिसालत तो वलायत, वलायत तो फ़कर। जब तक इस सच्चे विच नहीं टले उन्ना चिर तक असी रब वाले नहीं बन सकते। तो असल गल ये कि जिन्होंने इस गल का शौक है उन्हें ही आना ना इधर, जिन्होंने रब दे नाल। बाकी जेड़े आंदे ने ना असी रब वाले हाँ, असी अल्लाह नूं जानने हाँ, असी अल्लाह नाल मुहब्बत रखने, बड़ियां गल्लां करदे ने। ये गले तो उत्ते उत्ते करदे ने। तुहानू अल्लाह नाल मुहब्बत होवे ते तुसी अल्लाह तो सिवा एक साह भी ना कड्डो। एक साह लैना भी तुहाडे वास्ते हराम होवे। हाँ, जो दम गाफिल सो दम काफिर। हाँ, तेरी याद बिना मेरे महबूबा जेड़ा साह आया वो हराम आया। असां वो साह भी की करना है जेड़ा। तो बई साडा ते ईमान कामिल है ना, ते अल्लाह वालियां दी मुहब्बत, अल्लाह दी मुहब्बत, अल्लाह वालियां दी मुहब्बत, अल्लाह दी मुहब्बत। और अल्लाह वाले कौन ने? ओदा फ़कर ही ते है, ओदा फ़कर ही ते है। हुण फ़कर ही कोई किसी नूं समझ लवे कि आ जेड़े गली गली मंगते फिरदे ने और ये फ़कीर ने, नहीं नहीं, नौज़ो बिल्ला, ये गदागर ने, ये मांगत ने दुनिया दे। जो फ़कर है वो अल्लाह दा मांगे थे, वो अल्लाह दा मोहताज है, किसी और दा मोहताज नहीं। और अल्लाह को मंगदा की है? ओदा जमाल। अल्लाह को मंगदा की है? ओदा जमाल, ओदा कुरब, वो असल फ़कर है। ये है फ़कर दी निस्बत, ये है फ़कर दा मकाम। और ये जे ये हासिल नहीं होया तो असी समझने हाँ कि ला शेख लाहू व ला दीन लाहू। हजूर एवं नहीं फरमाया जिदा कोई पीर नहीं ओदा कोई दीन ही नहीं। मेरे सरकार ते फ़कर नूं इतनी मुहब्बत फरमाई। आका फरमांदे ने अल फ़करो फ़खरी वल फ़करो मिन्नी, फ़कीर मेरा फ़खर ने और फ़कीर मेरे विचों ने। की ख्याल है गली गली मंगन वाले सरकार चों ने? नहीं नहीं, जो तालबे जमाले ज़ाते हक ने वो मेरे सरकार विचों ने, जिन्हां दा शौक ये होए कि सोहणिया तेरे कोलों आए सां, तेरे कोल ही जाना है, इत्थे रविए दे तावी तेरे ही रहिए। सानू पता है अगर दायमी हस्ती है, अगर दायमी वजूद है तो साडे रब दा वजूद है। इहदे उत्ते एक मैं गल ते उत्ते एक होर मोर लावां अगर तुसी पसंद करो तो। अल्लाह पाक फरमाया
सूरह रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया हर चीज़ फना हो जाएगी मगर अगर कुछ बाकी रहेगा, व यबका अगर किसी को बका है, अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो तुम्हारे रब का चेहरा है। वजह रब्बे का, वो तुम्हारे रब का चेहरा है जिसको के बका है। और वो चेहरा सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ज़ुल जलाल वल इकराम, वो नेमतों का और बरकतों का मालिक है तुम्हारे रब का चेहरा। उन ये तर्जमे करने वाले इत्थे भी डंडियां मार जाते हैं, इत्थे भी चेहरा आखन लगे डरते हैं कि शिरक ना हो जाए। अल्लाह वाले और रब नूं नहीं इस गल की फिक्र तुहानूं बड़ी पई है। तर्जमा ते लफ्ज़ां दा सही कर लिया करो। शिरक नहीं हुंदा, शिरक उदों होना जे रब ते मुखालफ चलोगे ते जे रब दी तारीफां करी जाओ तो शिरक तो डरन डे हो। अल्लाह अकबर। तो भाई जिहड़ा बाकी रहन वाला है जिन्हों बकायो तो फिर रब दे चेहरे नूं ही है ते क्यों ना उहदा शौक होवे सानू, क्यों ना उहदे वेखण दे मुतमन्नी होइए असी, क्यों ना उहदे कुरब दी लोड़ होवे सानू। अल्लाह अकबर। एवें तो नहीं मूसा वर्गिया भी आख्या रब्बे अरनी, मैं तेनू वेखना चाहना। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। तो ये है फ़क्र दी असल बुनियाद। ये बुनियाद मेरे मौला मुश्किल कुशा दी ज़ात नू आका रसूल अल्लाह दी ज़ात ने अता करके फरमाया कि फ़क्र दे सिलसिले नू आबाद इस तरह करो। ये मुनफरद ने। मेरा मालिक सबना नू पाक फ़क्र दी निस्बत और संगत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।